In characteristic table, we discussed that if present state is given us, that this is the present state, whether it is 0 or 1, these are the input combination, then what will be the next state. And in excitation table, we discussed if we are given the present state 0 or 1, and we are also given that we have to make this 0 or 1, then what should be the input combination for that particular flip flop. Now let's move on to the next flip flop, which is T flip flop. Now if you remember that in JK flip flop, if both the inputs are 1 1, then it works as a toggle for the output. That is, if the previous output was 0, then it becomes 1. If previous output was 1, then it becomes 0. We will use that particular concept of JK flip flop and convert a JK flip flop into T flip flop by simply joining the two inputs. You can see here that this is the JK flip flop, and we have simply combined J and K with one single input. This is a JK flip flop, and here we have combined the two inputs J and K and named it as T. Now T can have only two values, 0 or 1. When T is 0, then both J and K are 0 0. And when T is 1, then both the inputs J and K are 1. Okay, so based on the truth table of JK flip flop, we can now have the truth table of T flip flop. That is given in the right side of the diagram. That when T is 0 and Qn is 0, then next time Qn plus 1 will be 0. Because T is 0 means J and K both are 0 0. And the truth in the truth table of JK flip flop, it is said that when J and K are 0 0, then there is no change in the output. So if it is 1, then it is 1, 0, then 0. But when T is 1, then it will toggle because J and K both are 1 1. Is that clear? Yes. Anyone, any Yes, sir. doubt in T flip flop? Okay. Okay. So in T flip Okay. flop, there are only two states. This is generally used for designing the counters in the sequential circuit designs that we will see later on. Now let's move to the next slide, which is the concept of preset and clear in JK flip flop or in any flip flop. Till now we see that there are one or two inputs at the flip flop, and there is output and its complemented output at the JK flip flop and one control signal. But besides that, there are two more control signals that are given to the JK flip flop, and these are preset and clear. These can be given to any flip flop. Here we have taken this concept of preset and clear for T flip flop only. So what we have done is, this was the diagram of the combination circuit, sequential circuit for
JK flip-flop. There was no preset and clear in that diagram. But now at the NAND gate, just before the output, we have connected this preset here and clear here. So just check what will happen to the output if preset is 0 or 1. देखिए आप खुद यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में कि अगर हम प्रीसेट को 0 कर देते हैं तो दिस इज द NAND गेट, तो आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। और अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आउटपुट 0 होगी। इन दैट केस दैट विल डिपेंड अपॉन दी प्रीवियस कॉम्बिनेशन। जो भी आपके पीछे से सर्किट में जो भी इनपुट आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेम वे अगर हम क्लियर के ऊपर 0 रखते हैं then output of this NAND gate will become 1. That means आपकी आउटपुट यहाँ पे क्या बन जाएगी 0। और अगर हम इसको 1 करते हैं then output of this NAND gate will depend on the previous इनपुट तो इसको मिल रही है। तो उस केस में जो भी आपका नॉर्मल तरीके से बेसिकली टी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। ठीक है। So if we want to clear whatever has been stored in the flip flop, then we can simply set the clear as 0 for 1. Clear के ऊपर आप एक बार 0 प्रोवाइड कर दीजिए, your flip flop will be cleared from previous output, उसमें आपका 0 आ जाएगा। कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी एक्साइटेशन टेबल क्या करनी चाहिए। You simply connect clear to 0 and your flip flop will be cleared. ठीक इसी तरह अगर किसी सिचुएशन में आपको प्रीसेट यूज करना है जिसमें आपको आउटपुट जो है वो 1 ही रखनी है हमेशा, तो आप प्रीसेट को 0 कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर पीछे से कोई भी इनपुट आ रही है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो आपका आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर हमें नॉर्मल ऑपरेशन करवाने हैं, इन दैट केस वी विल कीप बोथ प्रीसेट एंड क्लियर एज 1। If preset is 1, then the effect of preset will not be on the flip flop. If clear is 1, the effect of clear will not be on the flip flop. The concept of preset will be applied if it is 0. Similarly, clear of concept will apply it if it is 0. So this type of thing when... Sir, Yes? your voice is not clear. अभी क्लियर है? नहीं सर, उतना ही है, वॉल्यूम बहुत कम है। ओके। And now? Yes, sir. हाँ सर, अब से। ओके, तो प्रीसेट और कंसेप्ट का क्लियर हमें अगर अप्लाई करना है तो उसके ऊपर हमें 0 अप्लाई करना पड़ेगा। सो इस तरीके की कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्टिव लो। दैट इज समथिंग इज एक्टिव व्हेन इट इज लो, व्हेन इट्स वैल्यू इज 0। एंड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एक्टिव लो और एक्टिव हाई, ए बबल इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द कंट्रोल सिग्नल। जहां पे भी वो हमारा कंट्रोल सिग्नल है उसके एंड पे हम एक बबल लगा देते हैं। दैट मीन्स दिस विल बी एक्टिव इफ प्रीसेट इज 0। तो आपको इस डायग्राम को फिर रेफर करने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे है। अभी तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे एक्टिव होगा, वो हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। लेकिन अगर यहाँ पे ये डायग्राम नहीं है, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नैंड गेट की बजाय नोर गेट से हमारा फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो सारा 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। सो वी डोंट नीड टू नो with what type of gates we have designed the JK flip-flop. With the help of this bubble, we can identify whether it will be active for 0 or 1. So this means these are low active. Same is for clear here. There is a bubble. Okay, this the logical symbol for the T flip-flop.
जिसमें हमें ये इस तरीके से कनेक्ट करके नहीं दिखाने हैं जे और के को. That is for our understanding that how we are designing the T flip flop. It's basically JK flip flop with J equal to K. लॉजिकल सिंबल इसका ये रहेगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी दी वर्किंग एंड वेव फॉर्म ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स. इसमें आपके टाइमिंग डायग्राम हमारे आते हैं. ठीक है. बिफोर मूविंग टू द टाइमिंग डायग्राम हमें एक और सिंबल को देखना है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका क्या मतलब है. this bubble and this particular triangle right here. कि हम इसको भी तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल एक कनेक्शन की तरह दिखा सकते थे जैसे जे और के को दिखाया है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं ट्रिगर. ट्रिगरिंग दी फ्लिप फ्लॉप. कि कौन से कॉन्सेप्ट से हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं. ठीक है. तो ट्रिगरिंग आपकी बेसिकली दो तरीके की होती है. एक होता है एज ट्रिगर और एक होता है लेवल ट्रिगर. एज ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर. आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एज ट्रिगर में जब भी कंट्रोल सिग्नल का एज होगा, एज मींस दिस इज द एज, दिस इज वन एज एंड दिस इज अनदर एज, वेदर इट इज बी 1 वेदर इट इज बी 0, उसके हिसाब से वो ट्रिगर होगा. और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. दिस इज फॉर लेवल ट्रिगर. दिस इज फॉर लेवल ट्रिगर. This is level 1, level 0, and this is edge. या तो आपका एज होगा वो पॉजिटिव एज होगा, तो वो आपकी जब क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 जा रही है उस टाइम पे आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर करेगा. या फिर 1 to 0 जा रही है तो उस टाइप पे ट्रिगर करेगा. तो अगर 0 to 1 जा रही है दैट मींस इट इज पॉजिटिव एज, तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. और अगर नीचे जाते टाइम ट्रिगर हो रहा है तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो अगर सिर्फ एक ट्रायंगल है, कोई बबल नहीं है यहाँ पे, दैट मींस इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. तो उसके लिए आप कैसे उसकी आउटपुट बनेगी, कैसे उसकी वेव फॉर्म बनेगी, वो हम अभी देखेंगे. पहले हमने दो इनपुट्स लिए हैं एस और आर. उसके डिफरेंट टाइम पे हमने 0101 उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी. उसके बाद हमने एक क्लॉक ली है. क्लॉक इज बेसिकली इज पीरियोडिक वेव फॉर्म. इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे अगर हम आजकल लैपटॉप लेते हैं तो हम प्रोसेसर्स की स्पीड देखते हैं. ठीक है. या फिर हम जब मोबाइल्स लेते हैं तो उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर एक वो होती है, उसकी रिफ्रेश रेट होती है कि 50 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर वो 50 बार रिफ्रेश होती है, 50 बार वो चेक कर सकती है कि क्या इनपुट उसके ऊपर आई है. ठीक इसी तरह का ठीक इसी तरह क्लॉक की भी फ्रीक्वेंसी होती है 1 किलो हर्ट्ज 1 मेगा हर्ट्ज. तो वो पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है आपकी. तो ये हमारी भी एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है. इसकी टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हो वो फिक्स है. ठीक है. इसके अंदर हमने एज बना लेने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड लाइक दिस. अब आपने ये देखना है कि ये ट्रायंगल के साथ में बबल है कि नहीं. यहाँ पे बबल नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ओनली द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक. तो ये देखिए जहां जहां पॉजिटिव एज था मैंने वहां पे एक डॉटेड लाइन लगा दी है. एक लाइन यहाँ पे लगाई है, एक लाइन यहाँ पे है, and so on. So what is the meaning of triggering that we will see here. जब आपका ये ट्रांजिशन हो रहा था 0 to 1 पे, उस टाइम पे आपकी जो भी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं that will decide the value of the output and not at any other time duration. सिर्फ the moment when your clock is going from 0 to 1, the moment where your positive edge of the clock is lying, सिर्फ उस लाइन को पकड़ो आप.
इस लाइन को हम देखेंगे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी S और R की वैल्यू क्या क्या है। तो वो S की वैल्यू है आपकी 0 और R की वैल्यू भी है 0। तो इसकी ट्रुथ टेबल हमें बताती है कि फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन देयर शुड बी नो चेंज इन द आउटपुट। सो दैट मीन्स नो चेंज। तो प्रीवियसली अगर 0 चलती हुई आ रही थी तो हमने उसको 0 ही आगे कंटिन्यू किया, यहां से लेके आगे तक। Now you can see that at this particular moment value of S is 1, but this particular change in the input will not be reflected in the output. Why? Because this, while this change is happening, there is no positive edge of the clock. एक बार पॉजिटिव एज आया, उसके बाद क्लॉक, उसके बाद जो भी इनपुट था वो चेंज आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो गया। अब आपके इनपुट चेंज होते रहे, कोई मैटर नहीं करता। It will only matter what is the input combination at the next positive edge, that is right here. Till then your output will be same. तो जब नेक्स्ट पॉजिटिव एज आया उस टाइम पे सेंस किया गया कि सेट S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है, सो सेट द वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद यहां से आगे वैल्यू 1 चलेगी यहां तक। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ऑल्सो, मतलब बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पॉजिटिव एज देयर इज अ चेंज ऑफ द वैल्यूज इन द इनपुट वेरिएबल्स। S की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, R की वैल्यू 1 हो गई है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारी आउटपुट जो वो 0 होनी चाहिए रीसेट, बट इट विल बी 0 ओनली एट द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ है इसके हिसाब से हमारी वैल्यू नहीं आएगी, हमारी वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वैल्यूज है, and that will remain till the next position. ठीक ऐसा ही यहाँ पे है, only this particular instance is taken into consideration to get the output. So this is the concept of triggering. There are specific time intervals, there are specific time triggering at which you have to take the you have to consider the input combination to identify the output in the next time cycle. ठीक है, सेम चीज होगी अगर यहाँ पे एक बबल लगा होता लाइक दिस, तो सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज edges we will go for these edges, negative edge. Only at these edges we will take into consideration the input change. That is the concept of triggering. लेवल ट्रिगर में क्या होता है कि हम एक पूरे लेवल को देखते हैं। अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो इस ड्यूरिंग द 0 to 1 sorry during this particular duration when your clock is 1, whatever will be the change in the input that will be reflected. तो वो इसी टाइम पे ही आपका जो है वो चेंज उसके अंदर आ जाता, तो उसमें ये वाला चेंज भी दिख जाता। ये वाला चेंज नहीं दिखाई देता क्योंकि दिस इज हैपनिंग व्हेन लेवल इज 0. So at these particular time durations that I'm circling now, इनपुट्स में जो भी चेंज है वो आपका चेंज आता फॉर पॉजिटिव लेवल। नेगेटिव लेवल के लिए हम इनको देखते। ठीक है, तो ट्रिगरिंग से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि किस टाइम पे आपको इनपुट को चेक करना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको यहां पे मिलेगा, दिस इज फॉर एज ट्रिगरिंग, दिस इज फॉर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज फॉर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, लेवल ट्रिगर के लिए आपको डायरेक्टली हो जाएगा। Any doubt in this? Sir, Oh, yes.
क्लॉक की फ्रीक्वेंसी एस और आर से 2 टाइम्स होगी सर? नहीं 2 टाइम्स नहीं, उससे काफी ज्यादा होती है। एस और आर की वैल्यूज तो हम चेंज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे लॉजिक के हिसाब से, कि कब हमें उसमें 0 स्टोर करना है, कब 1 स्टोर करना है, उसको मैनुअली भी कर सकते हो। क्लॉक की फ्रीक्वेंसी सेट होती है डिवाइस के अंदर, तो वो मेगा हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में काफी वो होती है। वो इसलिए ज्यादा रखते हैं हम, ताकि कोई भी चेंज जो है वो मिस ना हो पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने क्लॉक की फ्रीक्वेंसी रख दी है 1 हर्ट्स पर सेकेंड, और आपकी लॉजिक इस तरीके का है कि 1 सेकंड में 2 या 3 बार आपकी एस और आर की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो वो जो चेंजेस हैं बीच के, वहाँ उसका इफेक्ट तो आपका रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा आउटपुट में, आपकी वो करेक्ट आउटपुट नहीं रहेगी। तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी काफी हाई रखते हैं। ठीक है। यस। दिस इज द इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें भी हमने वही देखना है, पहले यहाँ से आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजिशन कौन सा है। पॉजिटिव एज क्लॉक है तो आप उसको ट्रुथ टेबल में इंसर्ट भी कर सकते हो विद दिस अपर एरो, अप एरो। ठीक है, तो जहां जहां पे पॉजिटिव एज है वहां वहां पे डॉटेड लाइन लगाइए। स्टार्टिंग में पीछे से क्या आउटपुट आ रहा है वो आपको कई बार दिया भी जा सकता है, कि कंसीडर इनिशियल आउटपुट एज 1 और 0, या फिर अगर नहीं दिया है तो आप उसको 0 से लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट 1 थी, फिर यहाँ पे इस पे सेंस किया गया, तो जे की वैल्यू 0 मिली और के की वैल्यू 1, दैट मीन्स रीसेट। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपकी रीसेट होगी। दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट टिल नेक्स्ट ट्रिगरिंग। वहां तक आपकी ये वैल्यू आप उसको 0 कर सकते हो, यहाँ आके आपको स्टॉप कर जाना है, यहाँ आके। उसके बाद आप दोबारा चेक करो कि इनपुट्स क्या है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स टॉगल। जो भी इनपुट, जो भी आउटपुट है उसको टॉगल कर दो। 0 था तो मैंने उसको 1 कर दिया। दिस विल बी कांस्टेंट टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे देखो जे और के की वैल्यू क्या है। जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, देयर शुड बी नो चेंज, तो नो चेंज चलता रहा यहाँ तक। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, सो जे इज 1, के इज 0, दैट मीन्स सेट द वैल्यू। तो वैल्यू को आपने 1 करना है, पहले से भी 1 चलती आ रही थी तो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे आए, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, टॉगल, तो हमने उसको टॉगल किया। आगे आए, फिर से जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, टॉगल, आउटपुट आपकी 1 हो गई। तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली आपने जो ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट है वो वेव फॉर्म में अप्लाई करना है। और वो हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये इसमें जो ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी देखना है साथ में। ठीक है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में हमारे क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमने एस आर लैच किया था, फिर उससे हमने फ्लिप फ्लॉप बनाया था बाय एडिंग ए कंट्रोल सिग्नल दैट इज क्लॉक। ठीक है, सो लैच इज एन asynchronous circuit whose output can change as soon as the inputs are applied. ठीक है, and latch is level triggered, and these are useful for storing binary information and for designing asynchronous sequential circuits. तो एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट जो है आप वो यहां से देख सकते हो, जो हमने पिछले डायग्राम में वेवफॉर्म बनाई थी। आपकी आउटपुट देखिए बिल्कुल सिंक्रोनस तरीके से आ रही है। सिंक्रोनस मींस एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम है, आपने बता दिया कि 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो हर सेकंड में इतनी बार आपकी आउटपुट आएगी। अगर हम इस कंट्रोल सिग्नल को नहीं रखते तो हमारी आउटपुट जो है वो इनके हिसाब से चेंज होती है जब जब इनपुट में वेरिएशन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0 था स्टार्टिंग में,
0 0 तो हमने उसको यहाँ पे 1 चल रही थी हमारी आउटपुट, तो वो 1 चलती यहाँ तक, या सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक चलती। और फिर जैसे ही k की वैल्यू 1 हुई तो आपकी वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाती। फिर यहाँ पे आके j की वैल्यू 1 होगी तो वो टॉगल हो जाती, फिर चलता रहता। फिर यहाँ पे j की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 1 है तो रीसेट हो जाएगा, फिर आगे चलता रहता, फिर यहाँ पे सेट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे चलता रहेगा, फिर यहाँ पे j और k1 टॉगल हो गया तो ऐसे चलता रहेगा आगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर कब हम सेंस कर रहे हैं उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, उसमें कोई क्लॉक नहीं है। ठीक है, तो सिंक्रोनस सर्किट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सारे के सारे कंपोनेंट्स में जो भी इनपुट है उसका इफेक्ट आउटपुट के ऊपर आएगा। अदरवाइज जे की वैल्यू कभी चेंज हो रही है, के की वैल्यू कभी चेंज हो रही है, तो उसमें किसी भी मोमेंट पे जो भी चेंज आ रहा है वो आएगा, दैट इज एसिंक्रोनस सर्किट्स। तो अगर हम कंट्रोल सिग्नल हटा देंगे तो वो लैच बन जाता है। ठीक है, अगर हम लेवल ट्रिगर्ड की भी बात करेंगे तो वो भी आपका एसिंक्रोनस में ही आएगा, क्योंकि जीरो जब जब आपका 1 है उसमें कभी भी ये आपका रिफ्लेक्शन आ सकता है, तो वो इनपुट के हिसाब से आपका रिफ्लेक्शन आउटपुट में आएगा। So latch is your asynchronous circuit, whereas flip flop is a synchronous circuit. उसमें आपका एक कंट्रोल सिग्नल भी होता है, या तो हाई टू लो में या फिर लो टू हाई में, ओनली फॉर एज ट्रिगर्ड। ठीक है, एंड इट कैन मेंटेन ए बाइनरी स्टेट इंडेफिनिटली, दैट इज एज लॉन्ग एज द पावर इज डिलीवर्ड टू द सर्किट और आपके इनपुट में कोई चेंज नहीं आता है तो आपकी जो स्टेट है वो तो उसके अंदर मेंटेन रहती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप इज their property, their characteristics about asynchronous or synchronous and their triggering. One is level triggered, another is edge triggered. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। This is the difference between synchronous and asynchronous circuits. जब भी आप डिजाइन करेंगे, कभी भी किसी की फाइनल सर्किट को एनालिसिस करना हो, उसके इनपुट आउटपुट को, you will always find that the synchronous sequential circuits will be easy to design. There is a clocked flip flop which acts as a memory storage element. इसमें आपका ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है। दिस इज अनक्लॉक्ड, इसमें कोई क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, बट सीक्वेंशियल सर्किट्स आर स्लोअर। स्लोअर क्यों है? बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी फास्ट है तो ठीक है, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी स्लो है तो वो स्लो हो जाएगा। दीज आर फास्टर। फास्टर मीन्स हम स्लो और फास्ट इस वे में कह रहे हैं कि जब आप जिस मोमेंट पे आपका इनपुट में चेंज आया, उस चेंज को आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। So with this idea, with this concept, asynchronous sequential circuits will always be faster, क्योंकि उसमें तो हम सेंस कर ही नहीं रहे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। उसमें तो as soon as the change in input occurs, at the same moment the output is changed, the change in the output is reflected. थोड़ा बहुत जो प्रोपेगेशन डिले है वो गेट्स की वजह से है, बट हम अपनी तरफ से कोई उसमें डिले नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम सिंक्रोनस सर्किट्स की बात करें तो उसमें हमने खुद को ही एक कंस्ट्रेंट कर दिया है कि वी आर sensing the inputs at this particular time duration only, at this particular instance only. ठीक है, then it is active edge triggered. These are level triggered. ठीक है, अगर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स को बनाना है तो हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं, और अगर हम एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स बना रहे हैं तो लैचेस का यूज करते हैं, क्योंकि लैचेस में कोई कंट्रोल सिग्नल ही नहीं होता।
So these are the differences between synchronous and asynchronous circuits. And with this we have completed the part of digital electronics. इसमें हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में फिर हमने स्टार्टिंग किया था फुल एडर से, हाफ एडर से फुल एडर, देन मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमने स्टडी किए हैं डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। वी स्टार्टेड विद लैचेस, एसआर लैच एंड देन एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और हमने इसमें के मैप के कॉन्सेप्ट भी किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि हाउ वी कैन रिड्यूस अ पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप एंड अप टू 4 वेरिएबल के मैप। तो आपको 4 वेरिएबल के मैप तक करना है। ठीक है, यू कैन गाइस गो थ्रू दी सिलेबस अगेन फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें आपको कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है कि जो छूट गया हो या जिसमें आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पूरी क्लास को लग रहा है कि ये टॉपिक सर से दोबारा करवा लेते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हो।